Hello friends, in today's lectures we will discuss Cauchy integral formula and numericals base of Cauchy integral formula. Before come to the Cauchy integral formula, we will discuss one more point. That is what? Extension of Cauchy integral theorem to multiple connected region. Actually in previous lectures we have discussed Cauchy integral theorem. Cauchy integral theorem is applicable in simply closed region. How to extend this Cauchy integral theorem into multiple connected region? Say this is a multiple connected regions in which C1, C2, C3 and C4 up to Cn are simply closed region. Then integration of f of z along that closed curve C is equal to sum of integration of f of z along each simply closed region within this curve C. It means integration of f of z along C is equal to integration of f of z along this simple closed curve plus this simple closed curve plus this simple closed curve and plus this simple closed curve and so on. Now this is the extension of Cauchy integral theorem to the multiple connected region. Now come to the main today theorem, that is Cauchy integral formula. What is this? Let f of z be analytic within and on a closed curve C and z naught is any point within this closed curve C. Then the value of the function f of z at z is equal to z naught is equal to 1 upon 2 pi I integration of f of z upon z minus z naught along this closed curve A. Or we can say, if we want to calculate integration, we can write in another way, that is this one, f of z, z minus z naught, integration of this function along this closed curve is equal to 2 pi I and value of the function f z at z is equal to z naught. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. Now proof करते हैं इसको. What is the proof? Let this function, whole function f of z upon z minus z naught be analytic at every point within and on C except what? Yes, except what? Z is equal to z naught pi. At z is equal to z naught, this whole function is not defined, and that types of the points are known as the singular points, the singularity of the function. And in details, the singularity we will discuss in the next lectures. Draw up. Let us assume z is equal to z naught is a singular point, means that function is not analytic at that point. अब करना क्या है इस केस में? एक पॉइंट, जो इस पॉइंट पे हमने एज्यूम किया इस पे फंक्शन सिंगुलर सॉरी एनालिटिक नहीं है, इस पे डेंटिंग की हम लोगों ने. डेंटिंग की क्या कि इसको सेंटर लेके एक वेरी स्मॉल रेडियस का एक सर्कल कंसीडर किया हम लोगों ने. C1 alpha is rho is the radius of this C1 circle, which is very small, very small within with center z naught and radius rho, such that इस तरह से कंसिडर किया कि ये कंप्लीट ये जो सर्कल है लाई कंप्लीटली इनसाइड दैट गिवन क्लोज सिंपली कनेक्टेड रीजन. ओके, नाउ f of z, अब ये कह सकते हैं हम लोग ये फंक्शन इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द क्लोज कर्व C and C1. It means what? क्या है इसका मीनिंग कि ये फंक्शन है ना f of z upon z minus z naught, ये फंक्शन एनालिटिक है कौन से रीजन में? which lies between C and C1. इस पूरे रीजन में ये फंक्शन हमारा एनालिटिक हो गया, क्योंकि जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं था उसको हम लोग ने डेंटिंग करके निकाल दिया. अब इसमें इसको अप्लाई करते हैं, इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. ओके, therefore what? Integration of this function along curve C is equal to integration of the functions along C1.
ये आ गया भाई, जिसको हमने इक्वेशन नंबर क्या एज्यूम कर लिया, 1 एज्यूम कर लिया। अब जरा इसको वर्कआउट करते हैं कि आगे ये क्या होगा। नाउ व्हाट द इक्वेशन ऑफ सर्कल C1, यहाँ हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, सेंटर क्या लिया इसका z माइनस जेड नोट, रेडियस लिया रो, तो इसका जो सर्कल आया इक्वेशन का mod of z minus z naught is equal to rho, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही आ गया। अब इसका सिंस वी नो दैट व्हाट mod of e raised to the power iota theta is equal to 1, therefore z minus z naught is equal to rho into e raised to the power iota theta। इससे हम लोगों ने z का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। z इज व्हाट, यहाँ से z आ जाएगा हमारा, अगर हम चेक करें z नॉट प्लस रो e raised to the power iota theta, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड्स को, ये dz हो जाएगा, तो z में तो पॉइंट है, कांस्टेंट है 0, रो रेडियस है कांस्टेंट एज इट इज, यहाँ पे थीटा वेरी करेगा, तो e raised to the power iota थीटा आयोटा, e raised to the power iota थीटा एज इट इज, आयोटा थीटा से आयोटा आएगा और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज जी थीटा। इन सभी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसमें, इससे की लेफ्ट हैंड साइड में, इसको वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ पे। f of z is equal to z minus z naught dz, what the value of z, यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, z naught plus rho e raised to the power iota theta, z minus z naught simply rho into e raised to the power iota theta, and what is the dz, dz is what, ये वैल्यू यहाँ से iota rho e raised to the power iota theta d theta, जो भी कैंसिल आउट हुई टर्म्स को कैंसिल आउट होगी, simply we will get this one, the value of this one is this। okay, we already assume that rho is very very small, rho is very very small, again if rho is very very small it means what, C1 shrinks to what, z naught, C1 किस पे श्रिंक हो जाएगा, z naught पे। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया है, एट सर्कल C1 shrinks to the point z naught, इट मींस व्हाट, इसको नेबरहुड को बहुत छोटा करेंगे तो इट मींस व्हाट, एप्सिलॉन इज व्हाट टेंड्स टू 0, एप्सिलॉन को यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो दैट इंटीग्रेशन बिकम्स व्हाट, आयोटा 0 to 2 pi f of z naught d theta, this one। Since z naught is a point, the value of the function at z naught is a constant, this is constant, and that whole circle, this since C1 is a complete circle, in so it rotates from what, with respect to theta, from what, 0 to 2 pi, so the limits of thetas are from 0 to 2 pi, put here, this is constant taken out from the integration, integrate d theta with respect to theta is theta, limits apply किया, तो that value of the integrals comes out 2 pi into iota, this one, so it means the value of this integral is equal to this one। now number 1, substitute this value in equation number 1, so we will get what, integration of this function along a given closed curve C is equal to 2 pi I f of 2 pi iota into f of z naught, और इससे हम लोगों ने f of z naught का वैल्यू कैलकुलेट किया इस इंटीग्रेशन को 2 pi iota से डिवाइड करके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट z is equal to z naught। okay, what is the important points of the Cauchy integral theorems when we will calculate the numericals, what are the important points? First of all, draw the given region, first of all draw a given region, and okay, now our target is calculate a point z naught, what the z naught inside circle C, okay, for which क्या करेंगे हम लोग, इसके फंक्शंस के डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करने की जो वैल्यूज आएगी z की, दीज आर कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट्स या सिंगुलैरिटीज, और इस केस में ये ना पोल्स होते हैं हमारे पास, इनको हम पोल्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को अगर हम लोग इवेलुएट करना चाह रहे हैं इस सर्कल के लोग चेक करें, तो व्हाट इज द डिनोमिनेटर, z-3, इसको सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो z=3, इस ये फंक्शन z=3 के लिए एनालिटिक नहीं है। अब चेक करें जो सर हम लोगों ने रीजन दिया उसको ड्रॉ किया, जो पॉइंट आया हमारे पास जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्या वो उस रीजन की बाउंड्री या उसके अंदर लाई कर रहा है, यस ये चेक करना है। अगर वो उसके अंदर लाई करते हैं तो इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेंगे।
इसको हमें, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। यस, z इक्वल टू 3 क्या है, लाइज इनसाइड व्हाट, द गिवन सर्कल। ओके, तब हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज व्हाट इज एफ जेड, व्हाट इज एफ जेड, डिनोमिनेटर को छोड़ के जिस पॉइंट, जो पॉइंट जिन पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उस उन फैक्टर्स को छोड़ के रिमेनिंग सबको हम लोग एफ जेड एज्यूम करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन को एफ जेड एज्यूम करेंगे। व्हाट इज एफ जेड इन दैट केस, एफ जेड इज व्हाट, दिस वन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, याद रखें 2 पाई आयोटा into the value of the function f of z at z is equal to z naught. Here z naught is 3. What is f z? F z is here what? Z square plus 5. Z को 3 सब्स्टिट्यूट किया, 3 square is 9, 9 plus 5 is 14, 14 to जा आप 28. The value of this integral is 28 pi iota. Again क्या डिस्कशन करना है, क्या इंटीग्रल थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस में फंक्शन को देखें, डिनोमिनेटर को 0 सब्स्टिट्यूट करें, उसके सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलरिटीज या पोल्स को हम लोग डिसाइड करें। जो पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी गिवन कर्व के अंदर लाई करें, उन पॉइंट्स को कंसिडर करें। अब एफ ऑफ जेड क्या है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले रहे हैं, तो उससे रिमेनिंग, उस फैक्टर से रिमेनिंग जो भी फंक्शंस होगा उसको एफ ऑफ जेड कंसिडर करें और ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें। ओके, बट इन दैट केस ये इंटीग्रल फॉर्मूले के लिए पोल शुड बी सिंपल, यानी पावर 1 होना चाहिए। अगर मोर देन 1 पावर है तो नेक्स्ट थ्योरम अप्लाई होगी। इसी सीरीज में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, उसको वर्कआउट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करेंगे। क्या है चेक करते हैं, है ना। पहला न्यूमेरिकल है इसमें, what is a closed curve? Closed curve is this one. ये closed curve है, ये closed curve है। Okay, put the denominator 0, singular points calculate करते हैं, z is equal to, it means this function is not analytic at that point। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इसकी बाउंड्री पे लाई कर रहा है, सिर्फ बाहर लाई कर रहा है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल का सेंटर कितना है, 1,0, रेडियस 1/2। अगर ये 1,0 है, रेडियस 1/2 है, तो ये पॉइंट आएगा हमारा 1,0, रेडियस 1/2 है, तो दिस इज व्हाट 3/2, 0, 3/2, 0। ओके, z इक्वल टू 2, क्या आ रहा है इस केस में, z इक्वल टू 2 इस रीजन के अंदर लाई नहीं करता है, रीजन के अंदर लाई नहीं करता है, सिंस z इक्वल टू 2 does not lie in the circle, तो इसलिए इसमें हम कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कोशी इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कोशी, जानबूझ के क्वेश्चन बताया, इसलिए बाई कोशी इंटीग्रल, इसमें क्या अप्लाई होगा, कोशी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई होगी, फॉर्मूला नहीं। तो बाई कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑलवेज 0। अब वो क्वेश्चन से लेते हैं जिनमें अब हमें क्या अप्लाई करना है, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन से लेते हैं। क्लियर है ना सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वन, चेक करिए। ओके, evaluate dz upon z square plus 9
where close, simply close color is what? This. Okay. क्या हमारा फंडामेंटल है? फंडामेंटल है हमारा कि हम इसके डिनोमिनेटर को क्या सब्स्टिट्यूट करें? जीरो सब्स्टिट्यूट करें. First of all, let the value of this integrations is this. इसके सिंगुलर पॉइंट्स कैलकुलेट करें. थ्री आयोटा क्या आता है इंटीग्रेशन? अगर इसको हम देखें फैक्टर्स करके, नाउ नंबर वन, किस किस के अलोंग लेना है? इस सर्कल के अलोंग लेना है, इस सर्कल के अलोंग लेना है, इस सर्कल के अलोंग लेना है. मैं इस क्वेश्चंस में पहले इन तीनों रीजन्स को ड्रॉ कर रहा हूं, फिर डिसाइड करेंगे कि what is fz in for this region, what is fz for this region, what is fz for this region, and what is z naught for this region, what is z naught for this region, and what is z naught for this region. ये हम डिसाइड करेंगे. ओके, पहला रीजन, ये सर्कल है हमारा, इसका सेंटर है 0,3 और रेडियस कितना है? 4. और रेडियस 4 है तो कहीं ये -1,0 से यहां से निकल जाएगा. चेक कर देखें. (0,3). What is the center of this circle? 0,3 और रेडियस कितना है? 4. तो रेडियस 4 यूनिट हो गया. इस तरह से हमने आइडिया लेके इसको ड्रॉ कर दिया. ओके, what are the poles? These are the poles या singular points. चेक कर रहे हैं इसमें क्या -3 आयोटा इस सर्कल में लाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि -3 आयोटा कहीं हमारा यहां पर है. 3 आयोटा यस लाई करेगा यहां पे. ये 3 आयोटा है. क्या होगा इस केस में? ओनली z इक्वल टू 3 आयोटा लाइज इनसाइड द सर्कल now. Hence, what is z naught? Z naught is what? 3 iota. And what is what? F of z. क्या बताया था कि इसको छोड़ के तो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास क्या बन जाएगा? f of z. तो what is f of z? 1 upon. Therefore, the value of the integration along this circle is equal to 2 pi iota f of z at z is equal to z naught. So 2 pi iota, what is f of z? Z plus 3 iota. What is z naught? 3 iota. इसमें सब्स्टिट्यूट किया 3 iota plus 3 iota 6 iota. Iota has cancelled. The answer is what? Pi by 3. Answer is what? Pi by 3. Now, अब कौन सा पार्ट ले रहे हैं स्टूडेंट? इसका सेकंड सर्कल. सर्कल सेंटर कितना है इसका? व्हाट इज द सेंटर? सेंटर यहां से ध्यान दें, सेंटर इज 0,-3. व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज 2 यूनिट.
अब इस सर्कल को ड्रॉ करना है, रेडियस 2 यूनिट, सर्कल को ड्रॉ करना है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है, इंपॉर्टेंटली समझना है। सेंटर 0, -3 से -1 -2 और दिस इज 0, -3। नोट द रेडियस, रेडियस इज 2 यूनिट, तो 2 यूनिट, तो सर्कल ऐसे आएगा हमारे पास, इधर 5 से पास होगा और ये इधर ऐसे ये सर्कल आएगा आपको। नाउ चेक अगेन, इन दोनों पॉइंट्स में से सर्कल में या सर्कल के अंदर कौन सा लाई करते हैं? दोनों लाई करते हैं। ओके, z इक्वल टू +3 आयोटा, +3 आयोटा तो हमारा यहाँ लाई करेगा। दिस लाई आउटसाइड द सर्कल, ओनली इनसाइड कौन सा लाई कर रहा है हमारे पास? -3 आयोटा, है ना? तो व्हाट इज z नॉट इन दैट केस? नाउ z नॉट इज व्हाट इन दैट केस? z नॉट इज -3 आयोटा। व्हाट इज द फंक्शन f of z? What is the function f of z? 1 upon what? z -3 आयोटा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या कौन सा पॉइंट मिला था? सिंगुलर पॉइंट मिला था इनसाइड द सर्कल। तो अप्लाई Cauchy integral formula. What is the value of the integration? Again 2 pi I, value of the function at what? Z is equal to Z naught. What is Z naught in that case? Simplify करें, Z को -3 आयोटा, -3 आयोटा, -3 आयोटा, -6 आयोटा, simplify -π/3. Okay students, we are taking the third one, third case. Third case check करें. What is the third case? Circle is what? ये कैसा सर्कल है? इसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस 5 यूनिट, इस तरह का सर्कल है ये। फाइव यूनिट, 0,5, 5,0 और ये पॉइंट हमारा 0,-5। इन दैट केस बोथ पॉइंट्स लाई इन दैट सर्कल। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट कि दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे, दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे। समथिंग हियर +3 आयोटा एंड -3 आयोटा। नाउ अब कैसे वर्कआउट करेंगे? व्हाट द वैल्यू? प्लीज चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक व्हाट इज z। फर्स्ट इसके रेस्पेक्ट में 3 आयोटा, दिस इज z नॉट। तो व्हाट इज द रिमेनिंग फंक्शन? रिमेनिंग फंक्शन 1 upon z plus 3 iota. This is what? f of z plus इसके अलावा मल्टीपल कनेक्टेड रीजन का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज z? व्हाट इज f of z? चेक करें। रिमेनिंग पार्ट विल बी f of z। पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे अगेन यहाँ पे। सेम, दिस कम्स आउट π/3 and this will becomes out -π/3. That is what? 0 in that case. But we have seen in that questions what are the important points? The points are: find out, calculate those points at which the function is not analytics. Second one, observe the region, draw the region and check these points which lie inside and on the boundary of the region. On that basis, identify what is f of z and apply Cauchy integral formula. Okay students, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था Cauchy integral formula and base numerical examples. Now we are going to discuss Cauchy integral formula for derivatives of an analytic function.
कोई कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव में जो डिफरेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल की हेल्प से, फोकस करके समझेंगे कि क्या डिफरेंस है। पहले स्टेटमेंट, let f of z be analytic function in a simply closed region D, then at any point z is equal to z naught of D, अगर उसके अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो एफ जेड के सभी डेरिवेटिव्स क्या करें, एग्जिस्ट करें और एनालिटिक भी हों उस पॉइंट पर इन D, then their values are given by at that point, their value means डेरिवेटिव्स की वैल्यू किस पॉइंट पर, z is equal to z naught पर। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कौन सा डेरिवेटिव लिया, nth डेरिवेटिव ले लिया, जनरल डेरिवेटिव ले लिया, इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ f of z upon z minus z naught raised to the power n plus 1 along a closed contour C, where n is what, n is equal to 1 2 3, where n is what 1 2 3 and dot so on। इसको ना हम लोग अगर और वाई दूसरी तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर इंटीग्रल फॉर्म में अप्लाई करना चाहें तो इससे इस इंटीग्रल की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, इस इंटीग्रल की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आई डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल एंड वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव एट z इक्वल टू z नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी इससे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, उसको देखते हैं। इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, इसमें जो सिंपली क्लोज कर्व है वो ये है हमारा। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसा हम लोगों ने कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले में डिस्कस किया था, वही स्टेप्स है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रांड जो दिया है उसकी सिंगुलरिटी चेक करें, मींस डिनोमिनेटर को 0 रखा, डिनोमिनेटर जेड क्यू माइनस 1 को 0 सब्स्टिट्यूट किया, इसके फैक्टर किया a क्यू माइनस बी क्यूब से, इसको इक्वल टू 0 रख के वैल्यू आई 1 और इसको इक्वल टू 1 रख के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वैल्यूज है। दो वैल्यूज है, देयर आर टू वैल्यूज हियर, एक है -1/2 प्लस आयोटा √3/2, इसको अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखे तो ये -1/2 कॉमा √3/2, इसको पॉइंट लिया z1, और सेकंड वन इज व्हाट -1/2 माइनस आयोटा √3/2, और इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का -1/2 कॉमा -√3/2, इसको एज्यूम किया z2। ओके, अब व्हाट इज द गिवन क्लोज कर्व, क्या रीजन है उसको चेकआउट किया, ये हमारा गिवन क्लोज कर्व है। क्या है ये, एक सर्कल जिसका सेंटर 1, 0 रेडियस 1 ड्रॉ किया, रेडियस 1 तो ये पॉइंट 2, 0। अभी चेक करना है अगेन, जैसे हमने पहले भी चेक किया था कि उन कौन से पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर ये सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, रीजन में लाई कर रहे हैं, रीजन की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, इनको चेक करना है। z इक्वल टू 1 बिल्कुल यस लाई कर रहा है, z इक्वल टू z1 ये वाला पॉइंट नहीं लाई करेगा, क्यों नहीं लाई करेगा, क्योंकि तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, माइनस प्लस z इक्वल टू z नोट ये वाला पॉइंट ये भी लाई नहीं करेगा क्योंकि तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इट मींस ओनली z इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड द सर्कल, गिवन सर्कल मॉड ऑफ z -1 इक्वल टू 1। ओके, अब एक पॉइंट आ गया, अब यहाँ पे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स लगेगा, यस ये है मेन पॉइंट। ओके, सिंस यहाँ पे जो सिंगुलैरिटीज है ये किस ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की, इट मींस यहाँ पे पावर दिया है, क्या दिया, पावर 2 दिया। अगर पावर 1 से ज्यादा है सिंगुलैरिटीज के लिए तो वहां पे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव लगेगा, अगर पावर 1 है तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा, सिंपली कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो z इक्वल टू 1 इज ए सिंगुलरिटी ऑफ सेकंड ऑर्डर, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ओके, तो व्हाट इज z नोट, सेम z नोट ये आ गया, n का वैल्यू कैलकुलेट करें, इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर किया, n प्लस 1 इक्वल टू व्हाट 2, तो व्हाट इज n इज 1, व्हाट इज f ऑफ z, इसके अगर हम लोगों ने फैक्टर किए थे तो इससे सिंगुलरिटी मिली जो हमारे सर्कल के अंदर लाई कर गई, अदर देन f ऑफ z हो गया, अदर देन इसके अलावा, क्योंकि अगर इसको हम इससे प्लेस करेंगे तो 1 अपॉन आएगा, तो ये 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए क्या आएगा, इसका वैल्यू 2 पाई आई डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और nth डेरिवेटिव की वैल्यू, व्हाट इज n इन दैट केस, n इज व्हाट 1, n इज 1, n इज 1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, व्हाट इज फंक्शन दिस 1, इसको डिफरेंशिएट किया,
सिंपल वे में जैसा करते हैं, सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया और उसमें जेड को 1 सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई किया, -4 आयोटा बाई 9. दिस द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल along this closed curve यानी along this circle. सेकेंड वन, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं. इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है और ये है हमारा क्लोज कर्व यानी ये सर्कल है. कौन सा सर्कल है? इसका सेंटर 2,0 रेडियस 3 यानी 5,0 हो जाएगा ये पॉइंट हमारा. रेडियस 3 यहाँ से 3 यूनिट है, ये सेंटर आपका 2,0 है. ओके, अगेन सिंगुलरिटीज कैलकुलेट करी, इसको डिनोमिनेटर इंटीग्रांड के डिनोमिनेटर को 0 सब्स्टिट्यूट किया. चेक करेंगे यहाँ पे ये z इक्वल टू 1,1 z इक्वल टू 3. ये सिंगुलरिटी सेकंड ऑर्डर की है यानी ये पोल सेकंड ऑर्डर का है और ये सिंपल पोल है यानी सिंपल यानी वन ऑर्डर की सिंगुलरिटी है. ये सिंगुलरिटी क्योंकि वन ऑर्डर की है तो इसलिए कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लग जाएगा इसमें. वेरी गुड, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लग गया. क्योंकि ये वन से ज्यादा ऑर्डर की है तो इसलिए क्या अप्लाई होगा इसमें अप्लाई होगा कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स. नाउ व्हाट इज द value of required integral is 1. First z is equal to 1 के लिए Cauchy integral formula for derivatives. What is n? n plus 1 is 2. n plus 1 is 2 for this point. So n is what? 1. First order derivative. What could be the function? Except this one, the whole becomes what? F of z. This is f of z. At what? z is equal to 1. And this is what? z is equal to 3 is a simple singularity, simple pole. So what is f of z in that case? This will be f of z in that case. Except this one, remaining is what? F of z. This one is f of z. Okay. Simple derivative. इसका डेरिवेटिव है आगे हमारे पास. इसमें हमने z को सिंपली 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया. इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? z को 1 सब्स्टिट्यूट किया, इसमें z को 3 सब्स्टिट्यूट किया, z को 1 सब्स्टिट्यूट किया, z को 3 सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई करके कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट किया. विल गेट व्हाट? -3 पाई आयोटा प्लस 3 पाई आयोटा इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज 0. क्या था इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट? इसमें दोनों फॉर्मूले अप्लाई हुए हमारे, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव. बेसिक डिफरेंस दोनों में केवल एक ही है. अगर सिंगुलरिटी वन ऑर्डर से ज्यादा की है तो उसके लिए कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, अदरवाइज कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स. अगले लेक्चर्स में फिर हम और आगे के अच्छे और कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके साथ मिलेंगे. ओके, टिल दैट, थैंक यू.